Welcome students. Welcome to standard 11th. My name is Darshana Darekar. I will teach you subject economics. And in this subject economics, today we are going to learn to our new topic, that is basic concepts of economics. This is first chapter according to your syllabus. In this chapter, today I going to clear you what is the basic concept of economics by explaining you various concepts are in this economics. Before the chapter, we will see what will we study, how many lessons in this year. In this year, you have to study 10 lesson. First lesson is basic concepts in economics. Second is money. Third is partition value. Fourth is the economy of Maharashtra. Fifth is rural development in India. Sixth one is the population in India. Seventh one is unemployment in India. Eighth one is poverty in India. Ninth one is economic policy in India since 1991. And 10th lesson is economic planning in India. So first chapter is basic concepts in economics. Okay. Today's world is marked by the scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enabled to prove what is the question, what is the science. Science is the systematic body of knowledge. There are main types of science. Means जो अराउंड हमारे वर्ड है वो उस वर्ड में पूरा इन्वेंशन से और डिस्कवरी से पूरा वर्ड भरा हुआ है. दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस इनेबल टू प्रूव इन टू क्वेश्चंस. बट वॉट इज द साइंस मीन्स वॉट. स्टार्टिंग विद द basically what is economics today word. There is a many inventions and innovations. Peoples are coming with new ideas, and that is the scientific proof that the peoples are coming with the new ideas. There are many scientific reasons coming with the new inventions and creations. So the basically appropriates and associates with the subject science. मीन्स ये जो इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, साइंस से होते हैं. बट मेन प्रॉब्लम है, मेन जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइंस. साइंस का मीनिंग है साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस. साइंस का मीनिंग है कि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज का. तो ये साइंस जो है वो साइंस के दो मेन साइंस है, टू मेन टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ साइंस इज two main types of science, natural science and second is a social science. So natural science is the one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in laboratory under controlled conditions. Natural science are also called exact science. Means natural science जो है वो natural science का जो लॉज है वो क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल रहता है, उसका वैलिडिटी रहता है. जो लॉज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल रहते हैं. वो जो भी वहाँ पे जो लॉज है वो जो लैब है उस लैब में टेस्टेड रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंडीशंस जो कंट्रोल में मतलब लैब के कंट्रोल में उसको पूरी तरह से प्रूव किया जाता है. उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस. और नेचुरल साइंस को दूसरा वर्ड क्या है, अदर वर्ड फॉर नेचुरल साइंस इज एग्जैक्ट साइंस. तो वो थिंग्स बेसिकली विच कैन गेट टू नो the testing itself or taking into the laboratory. That the problem theoretically, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम क्या करते हैं जो लैब में टेस्टेड किया जाता है, प्रूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस. अभी नेचुरल साइंस में कौन सी जो सब्जेक्ट्स वो आते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. दिस सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल साइंस. Natural science, maths, physics, chemistry, the theory of chemistry or experiment we call be tested in the laboratory itself. be the social science is a very much different from natural science. अभी social science जो है वो social science इससे डिफरेंट है. नेचुरल साइंस में क्या आता है, नेचुरल साइंस जो है वो मैथ्स का फॉर्मूला है. तो मैथ्स का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय आप टाइम करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलता है. मीन्स ये क्या है, मैथ्स का फॉर्मूला है. मीन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल साइंस है. ग्रेविटी का जो लॉ है वो ग्रेविटी का लॉ भी आप क्या कर सकते हैं, उसको टेस्टेड करके ही वो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है, एप्लीकेबल, मतलब उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गया. ये नेचुरल साइंस है.
Second is a social science. Second branch and second type of science is a social science. Social science is called abstract science or behavioral science because it is related to the study of some of other except of the human behavior. मुझे सोशल साइंस जो है वो सोशल साइंस का मतलब सबका जो ओपिनियन है वो सेम नहीं रहता है, हर एक का मेंटेलिटी अलग अलग रहता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर जो है सब ह्यूमन जो है वो सेम नहीं रहते, हर एक ह्यूमन जो है एक दूसरे से डिफरेंट रहता है. सो सोशल साइंस इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस बिकॉज इट डिपेंड ऑन द ओपिनियंस. जो एब्स्ट्रैक्ट साइंस और द उसको इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस और बिहेवियरल साइंस. ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकल टेस्टेड नॉट बी स्टडीड इन द laboratory. Hence the law of social sciences are not universally but are only statement of the general human tendency. मतलब यहाँ पे जो भी ह्यूमन बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए hence the law of social science are universal not universally acceptable. जैसे नेचुरल साइंस के जो लॉज है वो लॉज हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रहते हैं, वैसे सोशल साइंस के जो लॉज है वो सोशल साइंस के लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं रहते. सो ओनली स्टेटमेंट ऑफ द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. So these are the types of social science. Next point is a meaning of economics. Economics is a social science. The origin of from economics lie in Greek word oikonomia, which means management of the household. जब economics word आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि what is the ये economy से ही ये word आता है. As we show, social science is deeply in such a manner, it is going to be things that human behavior. Meaning of economic also associates that only the meaning of economics is the first thing that comes to our mind, that is a economy से ये economics word है. economics means economics is social science and origin of the term economics is from Greek word oikonomia which means management of household. मतलब ये economics जो word ये social science है, economics का जो ओरिजिन टर्म है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड ओकिनोमी का, ये आउटर कंट्री का ये लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड. तो ये ओकिनोमिया का विच ग्रीक जो लैंग्वेज है इसमें ग्रीक लैंग्वेज में ओकिनोमिया का मीनिंग रहता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. मतलब जो हर घर में हम मैनेजमेंट करते हैं, पैसों का मैनेजमेंट जो करते हैं, मनी का मैनेजमेंट जो होता है, बजट होता है, उसको ही क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. सो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ये घर के लिए जो वर्ड मैनेजमेंट जो घर का मैनेजमेंट रहता है उसके लिए पहले यूज़ होता था, बाद में इकोनॉमी के लिए ये वर्ड यूज़ होने लगा. तो दैट इज द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से पहला जो ओरिजिन है टर्म कौन सा है, और इकोनॉमिक्स टर्म जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, ओकिनोमिया ये वर्ड से. इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन. इकोनॉमिक्स को जो पॉल सैमुएल्सन जो प्रोफेसर है, इन्होंने इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि ये पॉल सैमुएल्सन ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस. Economics deal with the economic aspect of the human behavior. It deal with the human being satisfy unlimited wants with limited resources. क्यों कहा ऐसा, क्योंकि इस deal with the how human being satisfy unlimited wants with limited resources. मतलब यहाँ पे ऐसे डील करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही सजेस्ट किया जाता है कि जो अनलिमिटेड आपके वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे कंप्लीट करें. इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, इकोनॉमिक्स में मिलेगा. इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल Samuelson. Let's understand the nature of economics with respect to the some popular definition. First definition is given by Kautilya view on economics. Kautilya was a great statesman, philosopher, economist and royal advisor. During the Maurya period, he is also known as चाणक्य और विष्णुगुप्त. कौटिल्य अथोराइज द एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र. अब ये अर्थशास्त्र जो ये कौटिल्य जो है, कौटिल्य इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स में जो पॉलिटिशियंस रहते वो भी था, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइजर था ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. ये ऑल्सो नोन बाय द चाणक्य और विष्णुगुप्त. दूसरा नाम क्या है उसका, चाणक्य और विष्णुगुप्त इसका नाम है. कौटिल्य अथोराइज द एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र. कौटिल्य का जो व्यूज़ है, व्यूज़ मीन्स इंपॉर्टेंट, जो उनका व्यूज जो है, ओपिनियन जो है
इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे हम, तो अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो अर्थ का मीनिंग क्या है, वेल्थ और साइंस है, ऐसा कौन बोल रहा है, कौटिल्य। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र एम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। इसेशनली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस। अर्थशास्त्र मीन्स क्या है, वेल्थ, और शास्त्र का मीनिंग रहता है साइंस। अर्थशास्त्र एम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग और मैनेजिंग वेल्थ। वो क्या बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र मीन्स क्या, कि आपको कैसे वेल्थ को कमाना है, कैसे एक्वायर करना है और उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे एक्सपेंस करना है, कहाँ पे उसको सेव करके रखना है, इसके बारे में जो सजेशन आपको मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक्स से मिलेगा। उसको ही हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ऐसा कौटिल्यस का वी है। अभी की पॉइंट्स ऑफ बेस्ड ऑन कौटिल्यस व्यू, यहाँ पे की पॉइंट्स मीन्स मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्रूशियल रोल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, एकदम वो जो प्ले एनी स्टेट गवर्नमेंट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। Government play a very important role to strong their economy. Suppose we are said that China economy is a very strong, America economy is very strong, then who is responsible for that? Because particular nation, particular government are responsible for that to develop and expand to कंट्री। मतलब कोई भी हम बोलेंगे कि ये कंट्री का, अमेरिका का जो इकोनॉमी है बहुत क्या है, स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, बिकॉज वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट इज अ फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। क्या करना है, फोकस किसके ऊपर करना है, कि वेल्थ का क्रिएशन कैसे हो, इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ नीड टू इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी टू गुड गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट करने वाले हैं उसके हैंड में पूरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, उतना वेल्थ भी होने चाहिए टू फॉर गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीशंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र मीन्स कलेक्शन होना चाहिए पॉलिटिकल आइडियाज़ को, कि उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट आगे बढ़े या उस कंट्री का डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी डेफिनेशंस, फर्स्ट डेफिनेशंस गिवन बाय एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ is a father of economics, also regarded a father of economics, has given the wealth oriented definition of economics out of his many literacy contributions to economics। मतलब जो एडम स्मिथ है, several economics in the economics, but Adam Smith is a father of economics. We will see four economics definitions in the first lesson. First definition given by Adam Smith, classical economist है। Adam Smith also regarded as a father of economics, has given। तो first definition जो Adam Smith का है wealth oriented है, मीन्स wealth से related ये उनका definitions है। Economics out of his money, literacy contributions of economics. He is most famous for his 1776 piece of work, An Inquiry into the Nation and Causes of Wealth Nations. Adam Smith defined economic as a साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स का एक बुक लिखा था इन्होंने, पीस ऑफ मोस्ट फेमस वर्क एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन 1776 में एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमी एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक को कैसे एक्सप्रेस किया है, क्या उसका जो रिलेटेड है वो वेल्थ रिलेटेड है। तो एडम स्मिथ का की पॉइंट्स मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशंस के। तो फर्स्ट इज लिजेस फेरे, नॉट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। लिजेस फेरे मीन्स जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड लिजेस फेरे पॉलिसीज। मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी में जो भी कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी होती है उस इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लिजेस फेरे पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। गवर्नमेंट हैज़ टू कलेक्ट कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशंस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करना चाहिए, कैपिटल और वेल्थ का क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ नेचर लॉ इज इकोनॉमिक अफेयर। नेचर के लॉ भी इकोनॉमिक अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ थ्योरी। डिवीजन ऑफ लेबर में जो लेबर्स का फोर्स है वो क्या होना चाहिए, डिविजन्स उसका डिवाइड होना चाहिए लेबर फोर्स।
एक ही जो काम है वो एक ही लेबर नहीं करना चाहिए. So division of labor as an aspect of the growth theory. The divisions, the labors, we have to divide the labors into different work. That is called division of labor and aspect of some people have to give साइडिंग, आफ्टर दैट फ्रेमिंग, पेंटिंग्स, टास्क. ऐसे जो टास्क है वो क्या करने चाहिए, उसमें डिवाइड होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, फर्स्ट डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सेम. Adam Smith welfare oriented definition. Second definition is given by Alfred Marshall, welfare oriented definition. Neoclassical economics Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics in the book entitled Principle of Economics, which has published in 1890. His definition state economy is the study of mankind in the ordinary business of life. It examined that the part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material characteristics of well-being. Economics क्या है? Economics is the study of mankind. इनका जो मेन फोकस है वेलफेयर पे है. द फोकस्ड ऑन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन. तो अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल क्या कर रहे हैं, वेलफेयर पे ज़्यादा उनका फोकस्ड है. सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. इकोनॉमिक्स किसका स्टडी है, मैनकाइंड का स्टडी है. ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एग्जामाइन दैट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग. मतलब बिजनेस एग्जामाइन दैट, वो क्या एग्जामाइन कर दे, पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग. मटेरियल जो भी अवेलेबल उनके पास है उससे क्या होना चाहिए, उसका उनका वेलफेयर होना चाहिए. ये इसका मीनिंग है. इसके की पॉइंट्स क्या है, तो की पॉइंट्स इसके हैं स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन. फर्स्ट पॉइंट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन. सेकेंड इज अ इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस. इकोनॉमिक्स क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियरल साइंस है. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. मटेरियल से उसको वेलफेयर कैसे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेलफेयर. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सिंपली ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ का स्टडी नहीं है, तो उसको कैसे एक्यूमुलेशन करें, उसको कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू सेव, हाउ टू एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. मतलब ये इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है आपको कि हाउ टू एक्वायर वेल्थ एंड हाउ टू मैनेज द वेल्थ. दैट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट पॉइंट इज Lionel Robinson's scarcity oriented definition. We have already studied two definitions. Third definition is given by Lionel Robinson, scarcity oriented. Scarcity means किसी चीज़ का कमी होना, उसको बोलते हैं scarcity. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो एडम स्मिथ का था वो वेल्थ ओरिएंटेड था. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का जो डेफिनेशन है वेलफेयर ओरिएंटेड है. थर्ड डेफिनेशन जो है वो लियोनेल रॉबिन्सन का स्कैरसिटी ओरिएंटेड. देयर इज अ मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स Robbins in his book entitled An Easy on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, mention about the scarcity oriented definition of economics. जो लियोनेल रॉबिन्सन का जो डेफिनेशन है स्कैरसिटी ओरिएंटेड है. इन्होंने एक जो बुक लिखा था, इन्होंने रोट अ बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1992 में पब्लिश हुआ है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कैर्स विच है ऑल्टरनेटिव यूजेस. एंड्स मीन्स वॉन्ट्स. जो वॉन्ट्स है हमारे का अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कैर्स विच है ऑल्टरनेटिव यूजेस. सपोज यू हैव टू यू वांट टू बिल्ड अ हाउस बट you don't have enough money to build your house, then you can एडजस्ट दैट मनी इन सेविंग. मतलब वो जो मनी है वो मनी आप कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं या कहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं उसका, क्योंकि उस पैसों में आप उससे हाउस नहीं बना सकते. तो की पॉइंट्स क्या है इसके, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. जो वॉन्ट्स है वो कैसे अनलिमिटेड है, मीन्स और कंपेरेटिवली लिमिटेड. जो मीन्स है मतलब जहाँ से आप जो आपके पास जो पैसा है वो कैसा है, उससे लिमिटेड है, लेकिन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. उस वॉन्ट्स का आप ग्रेडेबल कर सकते हैं कि कौन से वॉन्ट्स को प्रायोरिटी दे, कौन से वॉन्ट्स को बाद में आप कंप्लीट कर सकते हैं. मीन्स है ऑल्टरनेटिव यूजेस. जो मीन्स है वो मीन्स का जो सपोज यू हैव
मनी, तो आपके पास मनी है तो मनी का आप ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, सिर्फ सेव ही नहीं कर सकते, उससे आप बहुत सारी चीज़ें भी परचेस कर सकते हैं, तो मीन्स है ऑल्टरनेटिव यूजेस। और बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, मीन्स जो बॉन्ड्स है बॉन्ड्स कभी ख़त्म नहीं होते, एक बॉन्ड्स कंप्लीट करने के बाद सेकेंड इज अराइज, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। So these are the definition. We have already seen definitions. Next point, branches of economics, we will study in another video.